Honorable Vice Chancellor Sir Professor Rajkumar ji, most respected Dean of the University Instruction Professor V.R. Sinha sir, eminent speaker of the day Shri Rajiv K. Mishra ji, Dean Alumni Relation Professor Anupama Sharma, Coordinator Interdisciplinary Center for Swami Vivekananda Studies Professor Sanjeev Sharma, Director Dr. SSB UICET Professor Amrit Parthor, and dear participants. A very good evening to one and all present here. It is said that yoga is not a workout, it is a work in. And this is a point of spiritual practice to make us teachable, to open up our hearts and focus our awareness so that we can know what we already know and be who we already are. So I welcome you all to the webinar on yoga, a holistic approach to health and wellness, being organized by Interdisciplinary Center for Swami Vivekananda Studies in collaboration with Dr. S.S. Bhatnagar, University Institute of Chemical Engineering and Technology, and Punjab University Alumni Association to mark the celebration of International Yoga Day. So to begin with, I invite the host of the event, Professor Sanjeev Sharma, Coordinator ICSVS and Professor UIAMS, to extend a formal welcome to all our guests and participants. Over to you, sir. Sir, with your permission, before we initiate the proceedings of the evening, may I request all to observe 1 minute silence in memory of our legendary iconic hero, Sardar Milkha Singh Ji, who left for his heavenly abode yesterday night. For a minute, sir. Thank you, sir. Sir, it will be a befitting tribute if we dedicate this series of webinars on International Yoga Day in the everlasting memory of our one of the greatest sporting heroes of our times. So we salute the indomitable spirit of Sardar Milkha Singh Ji. It is my proud privilege to welcome you all to this session on holistic approach on health and wellness on behalf of 3 organizing departments. Revered Vice Chancellor, sir, this is a maiden combined effort of Interdisciplinary Center for Swami Vivekananda Studies, Department of Alumni Relations, and Dr. SSB UICT. Presence of our Vice Chancellor adds a new flavor to this whole exercise because it is his initiative, which he started 3 years back to celebrate International Yoga Day on a bigger platform wherein he directed all our departments to organize these events. So this is the culmination of that effort which we are doing it. The presence of our dynamic and academic head, DGY Professor V.R. Sinha, has added a new vigor and motivation in us to, as he is our role model for many of these events. I will not, since Vice Chancellor sir has another event lined up, so I will not take much of his time. I will request him to please bless us. Professor Rajkumar ji, please. Hello. Yes. Thank you, Professor Sanjeev. Thanks. Yes, the distinguished speaker, Sri Rajiv Kumar Mishra ji, DY Professor Sinha, Professor Sanjeev Sharma, Professor Amrit Paltur, Professor Anupama Sharma, a very good number of the academicians, scientists, and the researchers of the university, participants
associated with this webinar, anchor Dr. Monica, and a very good number of the participants from the different departments and the institutes. At the outset, it is my very humble greeting to the distinguished speaker today. He's an expert of means life skill, and certainly he will give some inputs to the participants pertaining to the means easy-going life, balanced life. That is the need of our. Being the expert in that domain, certainly that would be very useful to the our student and entire fraternity of the Punjab University. क्योंकि आपने अभी शुरुआत में ये कहा कि ये जो इवेंट है इंटरनेशनल योगा डे के परिप्रेक्ष्य में है। इंटरनेशनल योगा डे सब लोग जानते हैं, ये 21 जून को होने वाला है, और इसके पहले ही हमें ये जान करके और ये कह करके भी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल योगा डे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि इसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसमें जो है पूरे जोर शोर से मनाया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी जो है मैंने डीवाई को दिया है। डीवाई पूरा अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हर यूनिट के हेड्स करें, डीसीडीसी सारे कॉलेजेस को जो है करें, इस पर एक पूरी जो है रिपोर्ट बना करके हम जो है इसको विभिन्न मंत्रालयों में भेज सकें। इसलिए इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 2-3 पेज में अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका इंस्ट्रक्शन जो है डीवाई खुद जो है लोगों को जारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये जो आपने थीम सेलेक्ट किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट इन द सेंस कि आज जब हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं तो हेल्थ और वेलनेस इसके बारे में जानना और इसके बारे में सोचना दोनों जरूरी है। और जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो आज जो है जो एक फिजिकल हेल्थ है वो तो ठीक ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, तमाम सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि कोरोना का जो पोस्ट इम्पैक्ट है, पोस्ट अफेक्ट जो है वो बड़ा हॉरिबल है। और उससे जो है न केवल आपका फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो रहा है बल्कि तमाम सारे केसेस में आप ये देखेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। और अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो जा रहा है नेगेटिव वे में तो निश्चित रूप से ये आपके पूरे शरीर को हिला देगा। और ऐसे तमाम सारे पेशेंट जो है चूंकि हमसे 2-4 हो रहे हैं और उनकी दशा के देख करके हमको बड़ा बहुत कष्ट भी होता है। और हमको इस बात का जो है विश्वास भी नहीं होता कि ये आदमी इतना स्ट्रांग विल का पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट के कारण मेंटली इतना जो है वो परेशान हो गया है। जैसे अननेसेसरी जो है दिमाग में आ जाना कि हमारा हार्ट बीट बढ़ रहा है, या हमें घबराहट हो रही है, या हमारा बीपी शूट कर गया है, या हमारा जो है शुगर लेवल शूट कर गया है। Although if you go by the instrument or by the test, everything is normal, but your mental perception very strongly accepting it. No, you are not fit. You are having this problem. You are having this BP and all those things. तो ये जो माइंड सेट वाली जो बात है इसके बारे में जो है जैसे जो राजू मिश्रा जैसे लोग हैं वही अच्छी तरह से बता पाएंगे कि एक बैलेंस फिजिकल और मेंटल हेल्थ का वो बैलेंस किस तरह से जो है करना जरूरी है। और जब ये दोनों बैलेंस रूप में चलेंगी तो आप देखेंगे वेलनेस तो आएगा ही। इट इज द आउटकम, वेलनेस इज द आउटकम। बेसिक चीज ये है कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक और बैलेंस रहने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आज जो कोरोना के पीरियड में एक तरफ तो सोशलाइजेशन हुआ है, वर्चुअल सोशलाइजेशन जबरदस्त हुआ है। लोग अपने इष्ट मित्रों से, अपने पुराने सगे संबंधियों से, अपने बच्चों से वे निरंतर जो है टेलीफोनिक या वर्चुअल मोड में जो है सक्रिय है। लेकिन आदमी की फीलिंग जब आमने सामने फेस टू फेस बात किया जाता है, आप एक
कम्युनिकेशन के तमाम सारे तरीके होते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग बताते हैं एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वो तुरंत आपके माइंड और आपके जो है आपके फिजिक्स से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। उसका जो है आज भी जो है वो जो फिजिक्स वर्चुअल मोड में वो कनेक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी मदर अपने बच्चे से बात कर रही है तो भले उसका वो फोटो देख रही है, वर्चुअल मोड में वो है, एवरीथिंग इज ओके, उसका गेस्चर भी वो देख रही है, बट ये टच करने का, एक जो है उसको छूने का या उससे जो है बात करने का जो फेस टू फेस वाला जो जरिया है वो जो है एकदम अलग तरह का होता है, और उसकी जो है नितांत कमी होने के कारण इस तरह के इम्बैलेंसेस। और अंतिम चीज मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि आज ये जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज होइए, आप ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों का भला करिए, आप ज्यादा से ज्यादा त्याग वाली बात होनी चाहिए। एक जेके मेहता हुआ करते थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वांटलेसनेस की बात कही। उनकी थियरी जो है, एक तरफ एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स शुरू किया उनका था वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द नेशन, उसने लिखा कि वेल्थ मींस मनी इज एवरीथिंग, और वहां से जो है वो इकोनॉमिक्स शुरू हुआ। और आकर के जब जेके मेहता तक पहुंचा जो आधुनिक काल में, तो उसको कह दिया गया वांटलेसनेस सोसाइटी की बात कही गई कि नहीं, आप अपनी इच्छाएं ही कम करिए। और कहीं मैं पढ़ा था आइंस्टीन ने भी यही बात कही थी, जब तमाम इतने बड़े रिसर्चर होने के बाद उन्होंने यही बात कही कि आदमी को जो है अपने माइंडसेट को बहुत ही होलिस्टिक बताने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी, सोशलाइजेशन, टुगेदरनेस, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना जो है आप आगे अब नहीं चल सकते। कोरोना ने ये बहुत बड़ा संकेत हमको आपको दिया है। और जैसा कि अभी मैं इस पेपर में, ये चैनल में मैं देख रहा हूँ कि बता रहे हैं, जो आजकल के वैज्ञानिकों का एस्टिमेट है कि कोरोना की जो थर्ड लहर जो है वो थर्ड वीक ऑफ और लास्ट वीक ऑफ दिस सितंबर में शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें जो है आपको अब ये मान के चलना है कि हम लोगों का बाकी जीवन कुछ अलग अलग समस्याओं से होकर के गुजरेंगी। और हम लोग तो चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, और इसमें हम जो है जहाँ चैलेंज होते हैं, जहाँ थ्रेट होते हैं, वहीं अपॉर्चुनिटी। आज इतने ज्यादा वेबिनार पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये थ्रेट दिया गया और हमारे आप जैसे वैज्ञानिकों ने घर से ही तमाम सारे काम करने शुरू किए। तो ये जो है एक नया डायमेंशन है, ये भी एक जो है मेंटल हेल्थ का, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो है, ये बहुत बड़ा जो है वो पूरक है। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी मोड में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी चीजों को देखना चाह रहे हैं, और यानी कि 2020 में भी जो है हमें बात करते रहते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन हमारा विश्वविद्यालय करीब करीब जो भी प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं वे इंटरडिसिप्लिनरी मोड, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जो है विवेकानंद, एक विचार है, एक जो है पर्सनालिटी है, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग कह लीजिए, और उसके साथ ही साथ अपने पुराने मित्रों को याद करते हुए इस तरह के चीजों का आयोजन करना निश्चित रूप से एक अनूठा प्रयास है। और मैं जो आयोजकगण हैं उनकी मैं बहुत बहुत सराहना करूंगा। और जितने भी प्रोग्राम होने चाहिए, विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं तो ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी है। वे प्रोग्राम जो सिंगल है उसमें तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि उनको कैसे कहूँ। और डीवाई कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल कि उन लोगों को भी बता दीजिए कि हम इतने प्रोग्राम करें मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में कि हमारी यूनिवर्सिटी एक बार एक अगला जो है, जैसे वेबिनार में हम नंबर 1 पर है पूरी इंडिया में, वैसे इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी में विगत मतलब 1 या 1.5 महीने के अंदर हम होकर के आपको दिखाएंगे। आप इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः मिश्रा जी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं ये बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि सारे लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। Thank you. Thank you. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, this particular, you have set the tone for today's webinar, sir. Sir, this particular program is a series
Today we will understand the protocols of yoga from Mishra ji, who is a trained consultant on such things. He conducts training programs for the multinationals and international participants. And tomorrow we have another program lined up by a corporate trainer, wherein large number of alumni are expected to join. So this all is being done under the leadership of our Dean University Instruction, sir, who guided us to do it in this format. Thank you, VC sir. Very good, very good. Again, Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Monica, please. We are so grateful to our Honorable Vice Chancellor for joining us and sparing time to bless us. Sir, thank you so much once again for being with us this evening. And it is only because of your motivation and guidance that we are continuously organizing such webinars and programs. Thank you once again. And now, ladies and gentlemen, we have amongst us a very renowned academician and administrator par excellence, our Dean of University Instruction, Professor V.R. Sinha sir, who is not only managing the university as DUI, but is also looking after so many other departments as chairperson. We are really grateful to you, sir, also because you have also spared your time for us today to bless us. And now I request you to deliver your presidential address. Over to you, Professor Sinha. Thank you, Professor Monica ji. Respected worthy Vice Chancellor, sir, Rajkumar ji, Sanjeev Sharma ji, Professor Sanjeev Sharma, the Director of the Vivekananda Studies, Professor Anupama Sharma ji, the Dean of the Alumni Affairs of the Punjab University, Professor Amrit Toorji, the Chairperson of the Chemical Engineering Department, the eminent speaker or trainer of the day, Mishra ji. I welcome you all in this particular program to commemorate the World Yoga Day. I am very happy that Sanjeev ji said that it is his first program as a director of the new, the new assignment he has received from the university. And I am very happy that three different stalwarts of the university, they have joined together to organize such a issue. It includes the Vivekananda Studies, Chemical Engineering, Totally Scientific, and then alumni. We must try to understand the importance of the health, and the COVID period has taught it very well. We know that those who are surviving, they are having a good immunity, or those who are suffering less is because of their good immunity. And this can only happen if you train your body, if you train your mind, and if you are disciplined in every aspect of the life. And this can only happen if we practice yoga every morning. The yoga, it is an ancient art. It is developed 1,000 years or practiced 1,000 years since 1,000 years and it is the great gift to whole of the world from the Indian. This is a holistic science, rather I can say it is a science, and this is a holistic. This particular science not only train your physical health, it also give you mental health and also give you the spirituality. The yoga has many you can say diversifications. Many of the yoga guru, they have trained our generations, and from generation to generation we have evolved much higher, and at present we are seeing that each and every house, at least many of us, they are practicing the yoga exercises and asana. This particular as the yoga it means to add, and add means what? Add physical health and add and connect yourself with the mental health. It is better
to have the prevention of the disease, the physical purity and clarity of the organs that can be trained by practicing the yoga. It reduces the mental tension. It is well understood. It reduces the fatigue, stress, and it is a need of the hour because of the stressful lifestyle, because of the different indisciplined food habits, and that warrants us that certainly in this competitive world we require a certain peace, and that peace and health come only when we practice the yoga as an exercise and as well as a philosophy that should be inculcated in our daily routine. It also gives a power to concentrate. It also provides a strength for the self-control. It is a science which can also heal your injuries. It can correct your body postures. It is very easy to perform at the same time. I'm not talking of the Hatha yoga. Certainly, Hatha yoga can be performed only by the experts, but most routine exercises which involves every part of our body that can contribute a lot. And I also, a few years back, I was just suffering from knee problem, and then I started certain knee exercises and yoga. And today, I don't do anything. I can proudly say that it has alleviated all the problems or mitigated to a great extent those problems only because of this practice of the yoga. And it also gave a determination, because every time we have many work as an administrator, as a teacher, every time we are flooded with the work, and mind could not decide that whether we should start the work or we should give some time for our own. But if you start practicing on a routine basis, it gives a discipline, it gives a determination, and certainly it provide a opportunity to other persons or fellow persons residing in the house to also inculcate such practices, especially the children. So we are not only practicing the yoga, but we are also motivating our youth for that. And I am really happy that an expert like Mishra ji has joined from such a great distance, spared his time for us, and it is really it will be a treat for us to listen such a personality. Once again, I congratulate Sanjeev Sharma ji, Anupama Sharma ji, Professor Toor, Professor Monica for organizing such a wonderful event and inviting a person or giving us a chance to listen a person who is master of this particular domain. So with these words, I once again congratulate all the three organizations and organizers. And certainly, as Professor Rajkumar said, yes, the teamwork always matters. It is always easy to perform a task by oneself, but if it is done in collaboration, certainly that gives better understanding among each other and better execution of the whole of the assignment. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. This is happening as per your orders, your guidance, and your motivation only. संजीव जी और अनुपमा जी, मैं सबको बताऊं, ये लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि मैं इनको जानता हूं. ये जिम भी जाते हैं, योगा भी करते हैं, और दूसरी बात, इन लोग बहुत अपने में संयम है. जैसे हम लोग खाने को देख करके अपने को संयमित नहीं रख पाते हैं कहीं, पर ये बहुत संयमित लोग हैं. ये जल्दी कोई जंक फूड भी टच नहीं करते हैं. सो इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं.
Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. So you truly said that yoga heals and encourages mental health, improves efficiency, and relieve our stress. Thank you so much, sir, once again for your blessings and sharing such words with us, such words of wisdom with us. Thank you once again. So, ladies and gentlemen, it's a time to introduce our eminent speaker of the day, Shri Rajiv K. Mishra ji. With 25 years of experience in yoga teaching and training, Shri Mishra has organized more than 3,000 different yogic programs, including more than 700 shivers, with numerous shivers for corporates and international clientele. He has dedicated his life to yoga and is working with philanthropic project called Life at Rajkot since 2004. He has been trained in yoga under spiritual gurus like Pujya Acharya Tulsi Ji, Pujya Acharya Mahapragya Ji. With more than 6 lakh people have benefited through the health and wellness platform of his project Life, with which he is associated passionately. His YouTube channel is highly acclaimed. He is sought after trainer for multinationals on self-management and spiritual healing. He is also the master trainer of trainers at Jain Vishwa Bharati, Rajasthan, as well as Preksha Vishwa Bharati, Koba, Gandhinagar, Gujarat. We are indeed fortunate, sir. We are so lucky to have you amongst us, and I hope all our listeners are going to be blessed with your words today. So now, taking no more time in between, I request Shri Mishra ji to deliver his talk. Over to you, sir. धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ श्री राजकुमार सर का, वाइस चांसलर सर, और प्रोफेसर VR सिन्हा साहब का, डीन यूनिवर्सिटी के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं श्री संजीव शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार आप तक रख सकूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ आज जुड़ने का ये मौका मिला। जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व संसार एक है, पूरा संसार कुटुंब है। और अभी के इस ग्लोबल युग में पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। तो इतना संजीव सर ने मुझे फोन किया कि है एक प्रोग्राम करना है। हमने कहा ये हमारे लिए अहोभाग्य होगा, सौभाग्य होगा कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। फिर मैंने सर को यूट्यूब पे कुछ चैनल्स भेजे थे फिर सर ने मुझे ये अवसर दिया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार मानता हूँ, हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया। योग के बारे में जो पुस्तकीय ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, उसकी चर्चा करना समय सीमा में बांधकर संभव नहीं। यहाँ पर हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो सभी के दैनिक जीवन में उपयोगी हो। संसार का कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, बीमार रहना नहीं चाहता, और हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। सभी की ख्वाहिश होती है वो स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, तो अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सिन्हा सर ने बोला कि आप लोग योग करती हैं, जिम जाती हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान रखती हैं। ये बहुत अच्छा लगा। देखिए, स्वास्थ्य को धन के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी को मालूम है हेल्थ इज वेल्थ। जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में हेल्थ कहाँ है, पहले वो ढूंढना है। आज इस 1.5 वर्षों के अंतर्गत जो कोरोना महामारी ने लोगों को ये एहसास करा दिया कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता क्या है, और इस 1.5 वर्षों में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो कोरोना के प्रभाव से अछूता है। कुछ दिनों पहले टीवी में ये बहुत बातें चली, आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं, आपके ऑक्सीजन की लेवल बहुत अच्छी रहती है। तो लोगों को लगा कि योग करने जैसी चीज है। फिर लोगों ने
जहां तहां सीख कर प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया, योग का अभ्यास किया। तो पहली बात ये है कि क्या योग शारीरिक स्वस्थता के लिए ही है? अभी योग का जो अभी हम देख रहे हैं वो केवल लोग ज्यादातर फिजिकल फिटनेस से जोड़कर इसको देखते हैं, लेकिन योग मात्र शारीरिक स्वस्थता नहीं है। योग से शारीरिक स्वस्थता के अलावा मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्वस्थता, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। अनादिकाल से योग हमारी संस्कृति में है। अगर मैं कहूं कि कृष्ण बहुत बड़े योगी थे, शिव बहुत बड़े योगी थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सब योगी, हजारों हजार लाखों लाखों तपस्वी ऋषि मुनि, ये सब तपस्या करके योग की साधना करके फिर अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा कि योग जन कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ विकल्प है, हर तरह से स्वस्थ रहने के लिए। अभी क्या होता है कि जो चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को हम कभी स्वीकार नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरे अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में फ्री मिल रहा है। हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन ब्रह्मांड में से फ्री में मिलेगा, उसके लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। लेकिन एक दौरान ऐसा भी आया जब ऑक्सीजन के लिए हमें हॉस्पिटल में पैसे देने पड़े, और वो भी एक ऐसी समस्या का लोगों ने सामना किया जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई। यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये है कि श्वास है, यही जीवन है, जिसको हम यौगिक भाषा में प्राण कहते हैं। गुजराती में हम कहते हैं कि श्वास ए जीवन, मतलब श्वास ही जीवन है। अब श्वास लेने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए योगियों ने प्राणायाम में बहुत विस्तार से बताया। यहाँ पर एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अगर आप योग को शारीरिक स्वस्थता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से योग का अभ्यास करता होगा, आप उनकी एनर्जी लेवल देखिए, बहुत अच्छी होगी। उनके शरीर के एक एक अवयव बहुत ही सक्रियता पूर्वक काम करते होंगे, तनाव से मुक्त, टेंशन फ्री। अनेकानेक लाभ योग करने से हो रहे। अब हमें इस बात को स्वीकार करना है कि हमें स्वस्थ रहना है तो योग को अपने जीवन में थोड़ा महत्व देना है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। आपको स्वस्थ रहना है, ये आपकी इच्छा। आपको बीमार रहना है, वो भी आपकी इच्छा। अब ये आपको तय करना है कि आपको स्वस्थ रहना है या बीमार रहना है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को लेकर आते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं कि प्रभु आप आने में आपने बहुत देर कर दी। यदि आप पहले आए होते तो कम से कम इन व्याधियों से आप बचे होते। अनेक बीमारी, अब उसका समाधान लोग योग में ढूंढ रहे हैं। तुम्हें डायबिटीज है तो योग से क्या इलाज होगा, ब्लड प्रेशर है तो योग से क्या इलाज होगा। यहाँ पर मैं एक बात जो जोरपूर्वक बलपूर्वक कहना चाहूंगा वो ये कि अगर आपका शरीर अभी रोग मुक्त है, आप योग को जीवन में अपनाइए और आप यकीन नहीं करेंगे, भले आपकी उम्र कितनी भी हो जाए,
आपका शरीर रोग मुक्त बना रहेगा। मैं सौराष्ट्र प्रदेश में रहता हूँ, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में। यहाँ से सोमनाथ द्वारका बहुत ही नजदीक है। आप लोग आए तो दर्शन करने के लिए हमें अवसर दें। 83 इयर्स के एक योगाचार्य हैं, बहुत नाम है उनका। और अगर आप उनके आसनों को देखें, आपको ताज्जुब होगा कि 83 वर्ष की उम्र में वो इतना बेहतरीन आसन कर सकते हैं। अभी तो आपके खड़े होकर पैर के अंगूठे छूने के लिए कहे जाए तो वो भी नहीं होते। शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, शरीर बेंड नहीं हो रहा। ओबेसिटी सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो योग जो है आपको हर तरह से स्वस्थ रखता है, और योग के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको ऐड करूंगा कि जिम जाने की एक उम्र है। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो जिम से बहुत प्रभावित हैं, जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि योग करने की कोई उम्र की सीमा नहीं है। हमारे यहाँ 70 साल 80 साल से ऊपर के लोग आते हैं योग करने के लिए, और योग से बड़े उनको बहुत फायदे होते हैं। तो मेरा एक संदेश सभी से ये है कि आप योग को आधे घंटे 1 घंटे के लिए जीवन में अपनाइए और ताउम्र अच्छी सेहत का अनुभव कीजिए। बिना पूंजी के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप स्वस्थ रह सकते हैं। केवल जरूरत है तो आपको 24 घंटे में से थोड़ा वक्त अपने लिए निकालने की। व्यक्ति के पास सबके लिए, सब कुछ के लिए वक्त है, बस नहीं वक्त है तो स्वयं के लिए उनके पास वक्त नहीं है। योग स्वस्थ रहने का श्रेष्ठ माध्यम है, श्रेष्ठ विकल्प है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप योग को नियमित रूप से करते हैं तो उसका आने वाले समय में जो प्रभाव है शरीर, मन, भावनाओं, इन सब पर होता है। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए हमें कहे जाते हैं कि सर स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, उस पर आप अपने वक्तव्य रखिए। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि स्ट्रेस तो आपकी मानसिक अवस्था है, उसमें योग क्या भूमिका निभा सकता है। तो योग जो है आपको मन की असीम शांति प्रदान करता है। अगर आप ध्यान की, मैं ध्यान का ट्रेनर हूं, ध्यान से आपको मन की असीम शांति की अनुभूति होती है। जिस शांति को हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते वो हमारे भीतर है, लेकिन ढूंढ नहीं पाते। आज हम जो कुछ मुख्य बातें करेंगे उसमें बहुत ही प्रारंभिक चीजें मैं बताऊं कि महर्षि पतंजलि ने जो योग के बारे में बताया, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, उस अष्टांग योग में उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों की चर्चा की। यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये 8 अंग जब भी मिलते हैं तभी योग होता है। आसन योग का एक अंग है, ये संपूर्ण योग नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, कमर, पैर, बहुत सारे अवयव मिलकर शरीर कहलाते हैं। इसी तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग मिलकर योग कहलाते हैं। आप हाथ को शरीर नहीं कह सकते, पैर को शरीर नहीं कह सकते, उसी तरह केवल आसन को हम योग नहीं कह सकते। योग के लिए 8 अंगों का अभ्यास जरूरी है, जिसमें 4 बहिरंग योग है, 4 अंतरंग योग है। योग क्या करता है? योग का थीम अगर क्लाइमैक्स पकड़ने जाए, योग के क्लाइमैक्स के बारे में अगर समझने जाए, तो योग हमें सिखाता है
आत्मा का परमात्मा से मिलन। अभी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से मैं यहाँ सभी को ये कहना चाहूंगा कि योग के माध्यम से आप समभाव की स्थिति जो है, जिसे हम तटस्थ भाव कहते हैं, उस स्थिति में आप रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा है समत्तम योग उच्यते, योग से समता के भाव का विकास होता है। दूसरी बात कि योग आपको डिटैच करता है इन चीजों से, आपकी बुराइयों से। आप जितना ज्यादा इन चीजों से डिटैच होंगे, उतना ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य को अपने अच्छा अनुभव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज के ऊपर जो मैं कहना चाहूंगा, खास करके मानसिक स्वस्थता के लिए ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए, योग में जैसा मैंने कहा कि 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें ध्यान जो है मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। आप थोड़ी देर आंखों को बंद करके केवल श्वास पर अनुभव कीजिए, ध्यान कीजिए। असीम शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा। आज पूरे विश्व में योग को लोग विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन केवल योग एक दिन करने की चीज नहीं है। आप जीवन के एक एक क्षण योगमय जीवन जिए, ये बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें जो है बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमें सिखाया गया कि अर्ली टू वेट, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन बहुत ऐसे युवा हैं जो सुबह का सूर्य किधर उगता है उनको आज तक नहीं मालूम। योग में कहा गया है कि जो सुबह उठे, मतलब सूर्योदय से पहले जो बिस्तर छोड़ दे, उठ जाए, वो होता है योगी। और सूर्योदय के बाद जो उठे, वो जिंदगी भर रहता है रोगी। अब आप देखिए, आपको योगी बनना है या रोगी बनना है। हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी सब ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व देते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आज भी बहुत सारी मंदिरों में जो ईश्वर की उपासना होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ समय है योग करने के लिए। और एक बात यहाँ कहूंगा, याद रखने जैसी बात है कि जैसी मुद्रा, मुद्रा का मतलब पोस्चर, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्राव, मतलब सिक्रीशंस, हमारे शरीर में जो हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं। जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्राव, जैसा स्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार। मतलब केवल आपकी एक मुद्रा से पूरा व्यवहार परिलक्षित होता है। मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, शायद आपको याद रह जाए। मैं कई बार हमारे कार्यक्रम में कहता हूं कि गुस्सा करो लेकिन प्यार से। अब आप बोलोगे ये तो बहुत विचित्र बात है आपने कर दी सर, कि गुस्सा करो, क्रोध करो, लेकिन प्यार से। वो कैसे संभव है? संभव है? केवल एक
एक चीज देखो, आपकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना आपको, जब भी क्रोध आए, गुस्सा आए, केवल आप ये मुद्रा बना लो। ये कौन सी मुद्रा कहलाती है? प्रणाम मुद्रा। केवल आप ये मुद्रा बना लें गुस्से के समय में, जब आपको क्रोध आ गया हो, आ रहा हो, आने वाला हो, तो ये मुद्रा बना लें। अब आप बताइए कि इस स्थिति में आपको क्रोध आएगा, इसमें आप किसी से लड़ पाएंगे? किसी के साथ बहस कर पाएंगे? केवल मुद्रा, आपकी केवल एक बॉडी पोस्चर से आपका पूरा स्वभाव बदल जाता है। योग जीवन शैली है, योग इज लाइफ स्टाइल। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान बहुत अच्छा है। योग आपके भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, परिवर्तन भीतर से आता है। मन एकदम शांत। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते सर बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? तो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन एकदम शांत होता चला जाएगा। आपके विचारों में एक परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए हम योग की साधना करते हैं, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, अर्थात आत्म साक्षात्कार। ये आत्म साक्षात्कार की अनुभूति योग की परम सिद्धि है। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार करना, हम कौन हैं, क्या हैं और किस लिए इस जगत में आए हैं, इसके लिए अगर आप आंख बंद करके इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको इस बारे में आपके प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। यहाँ पर योग एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। आज बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर हो रहे। ये ना मैं हर 3 साल पे पर ना वो करा केवल रहा है, धाम सच लोनावाला, में करा रहा है। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस होते हैं, और वहां पर अलग अलग देशों के लोग योग के ऊपर अलग अलग संशोधन करके वहां योग से होने वाले प्रभावों के बारे में बताने आते हैं। तभी लगता है कि इतना साइंटिफिक है। आज के व्यक्ति कोई चीज को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो। हर बात को साइंटिफिक जो है वो तराजू पर तौलने की जो हम कोशिश करते हैं, फिर हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, इस बात में तथ्य है। लेकिन योग में हर एक चीज का अपना एक विशिष्ट महत्व है। योग स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है, आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है, चित्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कहा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, शमन होता है। अपने विचारों को आध्यात्मिक बनाने के लिए, अपने विचारों को पवित्र बनाने के लिए योग बहुत सहायक होता है। मैं तो कई बार हमारे कार्यक्रम में कहता रहता हूँ कि आज के लोग, जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो केवल विचारों से परेशान है। धन दौलत से परेशान कोई नहीं है, केवल विचारों से परेशान है। अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा आप योग के माध्यम से दे सकते हैं। यहां मैं योग की बात कर रहा हूं, मतलब केवल आसन की बात नहीं कर रहा। यहां मैं योग के 8 अंगों की चर्चा कर रहा हूं। हमारे योग शब्द का अर्थ योग के 8 अंगों से है। लेकिन अभी योग को ज्यादातर लोगों ने आसन के साथ, शारीरिक जो है पोस्चर्स के साथ जो है इसको बदल दिया। लेकिन हमें योग को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। अभी मुझे जितना वक्त दिया गया, तो मैं चाहूंगा कि जिस परिप्रेक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व के लोग योग को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और भारत सरकार ने योग के पूरे प्रोटोकॉल पर निर्धारित किया है। तो मैं चाहूंगा
कि जितना वक्त हमारे पास अभी है उतने वक्त में हम योग प्रोटोकॉल के बारे में जाने और उसमें दिए गए जो आसन है, प्राणायाम है, उसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें। तो मेरे साथ जो हमारे लाइव की डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो कैमरा चालू करो, यहाँ नहीं आ रहा। आपको डेमोन्स्ट्रेटर दिख रही है मैडम? नहीं सर, नहीं। एक मिनट मैडम। यस, अभी दिख रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके ओके। तो मैं चाहूंगा कि जो थोड़ा वक्त हम इसमें लगाएं और इसमें से हो सकता है कि आप बहुत सारे सर कुछ कहा आपने? नहीं सर, नहीं, प्लीज कंटिन्यू सर। मैं चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल हैं हम उसको देखें और इसमें से बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो आप अभ्यास करते होंगे, प्राणायाम का अभ्यास करते होंगे। तो हम एक बार जो है एक एक मिनट में हम जो है एक एक आसन को करेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा है, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने गुरु को, अपने इष्ट को हम प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें स्वस्थ रखें। अब हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कैमरा को थोड़ा सा सेट करने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है गर्दन के लिए, दोनों हाथ कमर पे, पहले श्वास को छोड़ते हुए। योग में श्वास का बहुत महत्व है, प्रत्येक क्रिया को श्वास के साथ जोड़कर करना होता है। तो श्वास को छोड़ते हुए पहले गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। जो आपका चिन्ह है वो वोकल कॉर्ड को टच करेगा। जिनको थायराइड की समस्या है ये उनके लिए बहुत लाभदायी है। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे। रिलैक्स। दूसरी क्रिया में गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी तरफ घुमाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। फिर गर्दन को सामने की तरफ श्वास को भरते हुए। फिर दूसरी तरफ गर्दन को घुमाएंगे। फिर गर्दन को सामने की तरफ। अगली क्रिया में श्वास को छोड़ते हुए अपने कान को दाहिने कंधे से टच करेंगे। गर्दन को झुकाना है, जितना हो सके गर्दन को झुकाते हुए कान को कंधे से स्पर्श करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को सीधा करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दूसरी तरफ। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को सीधी करेंगे। अब इसके बाद गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। खास करके जो लोग ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हो या गर्दन को नीचे झुका कर रखते हो या एक ही अवस्था में गर्दन को ऊपर रखते हो, तो उनको ये एक्सरसाइज जो है ये गर्दन की जरूर करनी चाहिए। उससे उनके गर्दन को बहुत फायदा होगा। खास करके जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ऐसी कोई तकलीफ से वो बचे रहेंगे। अब इसके बाद शोल्डर के लिए करेंगे। दोनों हाथों को आप कंधे के समानांतर फैला लीजिए। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जितना हो सके पोजीशन को होल्ड करेंगे। योग में एक चीज याद रखना है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता बहुत आवश्यक है। सुख पूर्वक किसी भी आसनों का आप अभ्यास करें और योग में आसनों के टाइमिंग को आप जितनी देर मेंटेन रखेंगे उसका उतना बेहतरीन लाभ जो है आपको होगा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लाइए। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे वो शोल्डर के लिए, दोनों हाथों को कंधे पर। अब धीरे धीरे
दोनों एल्बोज को आगे से टच करते हुए आप आगे से पीछे की तरफ कंधे को गोल घुमाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस रिवर्स रिलैक्स। अब इसके बाद कमर के लिए दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला। अब दोनों साइड से अपने हाथों को कमर पे, एक हाथ पीछे और एक हाथ शोल्डर पर, कमर को ट्विस्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा है। आजकल लोगों को बैक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, काफी लोगों को बैक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये जो ट्विस्टिंग है इससे बैक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसी तरह दूसरी तरफ कमर को ट्विस्ट करेंगे, दूसरी साइड एंड रिलैक्स। अब इसके बाद घुटनों के लिए चेयर पोज जिसको कहते हैं, दोनों पैरों के बीच फासला, दोनों हाथ सामने की तरफ। अब जितना हो सके आप नी के बैंड करने की कोशिश कीजिए, इससे घुटने बहुत अच्छे रहते हैं। जैसा सर ने अभी कहा था उनके घुटने में तकलीफ थी और उन्होंने योग से ठीक किया। ये एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके घुटने को काफी शक्तिशाली बना के रखता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है ताड़ासन। दोनों हाथ लॉक करेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस आसन से जो स्फूर्ति है पूरे शरीर में आती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। इस पोजीशन में आप देखेंगे कि आपकी एड़ी का भाग है वो जमीन से ऊपर की तरफ है। फिर 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे पैर को जमीन ऊपर और हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब इसके बाद जो अभ्यास हम करेंगे उसका नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। ये पैरों के स्नायुओं को मजबूत बनाता है और इस संतुलन, मन और शरीर के बीच का जो संतुलन है इस अभ्यास से बहुत ज्यादा आता है। आप देखेंगे एक पैर के ऊपर पूरे शरीर का बैलेंस बना हुआ है। फिर धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, पैर को बदलकर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। पैर को अच्छी तरह जमा लीजिए, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस अभ्यास का नाम है वृक्ष आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है पाद हस्तासन। दोनों पैरों के बीच फासला, दोनों हाथ साथल के आगे। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ पैर के अंगूठे को टच करेंगे। खास करके यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिनको बैक प्रॉब्लम हो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकेंड तक मेंटेन करेंगे, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे वो है अर्ध चंद्रासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कमर गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जितना हो सके ये अभ्यास आराम से कर सकते हैं आप। ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है, इससे आपकी स्पाइन, आपकी करोड़रज्जु एकदम फ्लेक्सिबल रहती है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप कमर गर्दन को सीधा करेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। इसके बाद का जो अभ्यास होगा उसका नाम है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच फासला। अब आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, बाएं हाथ को कमर झुकाते हुए बाएं पैर के अंगूठे के पास ले जाइए। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल पोज। इस आसन से आपके कमर, आपके घुटने, आपके थाइज मसल, आपके शोल्डर
इन सबको फायदा होता है। फिर धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए सीधे हो जाइए। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करते हैं। एकदम आराम से करना है। आसन करते समय कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कई लोग बहुत जल्दी करते हैं। जितनी आप स्थिरता पूर्वक आसनों का अभ्यास करेंगे उसका उतना ही बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये खड़े होकर करने वालों का आसन पूरा होता है। अब आप बैठ जाइए। बैठने की अवस्था में जो दंड आसन जिसको कहते हैं, अर्थात दोनों पैर सामने की तरफ, दोनों हाथ आपके साथल के पास, इस पोजीशन में आप बैठेंगे। कमर को एकदम सीधा रखेंगे। थोड़ी देर इस अभ्यास में बैठने के बाद धीरे धीरे आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अब करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद इस पोजीशन में आप बैठिए। दोनों हाथ से अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ पकड़ लीजिए। आप देखेंगे कि इस अभ्यास में राइट लेफ्ट देख लेना। आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी है। गर्दन सामने की तरफ सीधी, नजरें सामने की तरफ। राइट लेफ्ट देख लेना। अब इसके बाद जो है हम लिखा आसनों होता का बटन के अभ्यास ऊपर। बदलते हैं और राइट या अब करेंगे वज्रासन। आर और एल। धीरे से दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाइए। ऐसा अमूमन कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन इस आसन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद आराम से कर सकते हैं। ये है वज्रासन। ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इस आसन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसके बाद करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों पैरों को आप घुटनों से सीधा करेंगे। अब दोनों हाथ कमर पर रखिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कमर के भाग को पीछे की तरफ ले जाइए। अगेन बैकवर्ड बेंडिंग। इस अभ्यास से आपकी स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल बनी रहती है। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आप कमर को सीधा कीजिए, गर्दन सीधी, और आराम से आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। ये था अर्ध उष्ट्रासन। अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन। एक बार फिर से घुटनों पर खड़े हो जाइए। फिर दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर लेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाइए। ये इसका फाइनल पोजीशन। यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे और वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बारी बारी हाथों को आगे लाते हुए आराम से बैठने की पोजीशन में वज्रासन में बैठ जाइए। कैमरा ऑफ हो गया भाई। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। यह आसन सबके लिए बहुत उपयोगी है। इससे जो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छी तरह काम करती है। इससे लंग्स को बहुत फायदा होता है और खास करके जिनकी याद शक्ति कमजोर हो उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। इससे हमारी याद शक्ति अच्छी रहती है। आप देखेंगे कि इस आसन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ ज्यादा होती है। यह आसन खास करके अस्थमैटिक लोगों को बहुत फायदा करता है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन। दोनों पैरों को खोल दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को पीठ पर क्रॉस में रखेंगे। दाहिने हाथ को बाएं पीठ पर, बाएं हाथ को दाहिने पीठ पर क्रॉस में। जितना हो सके आप अपने शोल्डर को स्ट्रेट सीधा खिंचा हुआ रखिए। एल्बो आपकी कोहनी एकदम सीधी रहेगी। इस पोजीशन में आप बैठेंगे। तो इससे कभी देखा होगा आपने कि बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। इस अभ्यास से उनको बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो कभी भी आपको शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहेगी। अब धीरे से वापस आ जाइए। इसके बाद जो हम अभ्यास करेंगे उसका नाम है वक्रासन। खास करके डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे पेनक्रियाज एकदम एक्टिव रहता है और जो डायबिटीज के दर्दी हैं या पेशेंट हैं अगर वो इस अभ्यास को करें तो उनको लाभ होगा।
लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है वो अगर करें तो उनका पेनक्रियाज एक्टिव रहेगा और वो डायबिटीज से स्वयं को बचा कर रख सकेंगे। अब इसमें अपने दाहिने पैर को मोड़िए और बाएं हाथ से घुटने को पेट की तरफ दबाइए, गर्दन को पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए आप मेंटेन कीजिए। इसका नाम है वक्रासन। तो आप देखेंगे कि इस अभ्यास में जो पेट का भाग है वो पूरी तरह से दब रहा है। अब धीरे धीरे अपने हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ दीजिए और इसी अभ्यास को दूसरे पैर को बदलते हुए करेंगे। दूसरे पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो हाथ है उसका ऑपोजिट लेग आपने पकड़ रखा है। जो इतना हाथ नहीं घुमा सकते वो हाथ को घुटनों से पकड़ सकते हैं। पर्पस आपके पेट का भाग जितना हो सके दबाने की कोशिश कीजिए। इस अभ्यास में थोड़ी देर आप रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ दीजिए और वापस पैरों को सीधा कर दीजिए। ये बैठकर करने वाले आसन के सीक्वेंस थे। अब हम कुछ आसन पेट के बल लेटकर करेंगे। सबसे पहले आप मकरासन की स्थिति में आप लेट सकते हैं। ये एक रिलैक्सिंग पोज है। जो मकरासन मकर मतलब क्रोकोडाइल को कहते हैं। ये स्पाइन को काफी रिलैक्स रखता है। तो जिनको बहुत स्ट्रेस रहता हो, बहुत थकान रहती हो, अगर उसी अभ्यास में बैठेंगे थोड़ी देर या लेटे रहेंगे तो उससे उनको एकदम जो है फायदा होगा और वो एकदम फ्रेशनेस का फील करेंगे, स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। अब इस अभ्यास में, इस पोजीशन में जो हम करेंगे उसका नाम है भुजंग आसन। दोनों हाथों को आप कंधे के पास रखिए। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आप अपने नाभि तक के भाग को ऊपर की तरफ उठाइए। यह आसन आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, खास करके इससे लंग्स को भी फायदा होता है, शोल्डर के ऊपर प्रेशर होता है, इससे उसको भी फायदा होता है। बहुत फायदेमंद आसन है। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप अपने सिर को जमीन पर ला सकते हैं। फिर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब इसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है शलभासन। दोनों पैर से हम एक साथ करते हैं। दोनों हाथ को आप शाथल के नीचे। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जितना हो सके पैरों की दूरी जमीन से ऊपर की तरफ जितना रख सके रखें। इसमें आपके स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव आता है। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन ऊपर लाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम पीठ के ऊपर लेट जाते हैं और पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटकर आप थोड़ी देर यहाँ शवासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। शवासन के अभ्यास के पश्चात फिर आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अभ्यास को जारी रखते हैं और अब हम करते हैं जिसका नाम है सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। दोनों हाथों को आप पैरों की तरफ श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आप अपने पीठ के भाग को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाइए। सेतु बंधासन बैक प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बहुत अच्छा है। और जब आप ऊपर जाते हैं आपका चिन्ह आपके वोकल कॉर्ड को टच करता है, जिससे थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत फायदा होता है। इससे थायराइड नहीं होगा। एक बात। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पीठ के भाग को जमीन पर लाइए, पैर को सीधा कीजिए। अब इसके बाद का जो अभ्यास है उसका नाम है उत्थित पादासन, उत्तान पादासन। उत्तान का मतलब होता है उठाना, पाद का मतलब पैर। अब दोनों पैरों को एक साथ रखिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री ऊपर की तरफ ले जाइए। इस अभ्यास में आपके नाभि के भाग पर बहुत ज्यादा जोर आता है। ये आपके पेड़ों के भाग, नाभि के भाग, पेट के मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके थाइज मसल्स को बहुत फायदा होता है, लोअर बैक को बहुत फायदा होता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को जमीन के ऊपर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है
वो है पवन मुक्तासन। खास करके गैस्ट्रिक, एसिडिटी, पेट से संबंधित तकलीफ से बचने के लिए ये अभ्यास बहुत सहायक है। दोनों पैरों को मोड़िए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ घुटने से पकड़िए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाइए। पवन मुक्तासन पेट से संबंधित सभी विकारों को ये दूर करता है और खास करके जिनको वजन कम करना हो उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सिर के भाग को जमीन ऊपर, हाथों को साथल के पास, पैर का भाग सीधा करेंगे और आराम से शवासन की अवस्था में लेट जाए। हर एक अभ्यास के बाद थोड़ी देर का शवासन बहुत जरूरी है, जिससे शरीर में कोई थकान नहीं आती, शरीर एकदम रिलैक्स होता है और उसके बाद जब आप फिर से अभ्यास करते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आप धीरे से बैठ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक क्लास बता देता हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि प्रोटोकॉल में क्या क्या है। तो सबसे पहले प्राणायाम में एक अभ्यास जिसको हम कपालभाति, जिसको हम शुद्धिकरण क्रिया के नाम से जानते हैं, ये बॉडी को प्यूरिफाई करता है। इसमें दोनों हाथ घुटने पर और श्वास को बाहर की तरफ जितना हो सके फोर्सफुली छोड़ेंगे। जब आप पेट श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपका जो पेट का भाग है वो अंदर की तरफ जाएगा। नाभि पर ये जर्क आप महसूस कर सकते हैं और कहा गया है कि 1 मिनट में कम से कम 120 बार ये अभ्यास होना चाहिए। और अभी के समय में कहना चाहूंगा कि जिनको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी हो उनके लिए ये अभ्यास सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, शरीर के भीतर जो विशुद्ध तत्व है, विकार है, वो इससे बाहर निकलते हैं और पूरा शरीर फिर से ऑक्सीजन से, ऊर्जा से भर जाता है। अब इस अभ्यास को यहाँ पूरा करते हैं और अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे नासिका पर, दाहिनी नासिका और बाईं नासिका पर, और बारी बारी से दोनों नासिका से श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे। इसका नाम है नाड़ी शोधन। योग में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है और उन 72,000 नाड़ियों को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास ये किया जाता है। सर मैं उवेश बोल रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स। अब इस अभ्यास को पूरा करेंगे और अब करेंगे शीतली प्राणायाम। धीरे से जीभ को बाहर निकालेंगे और श्वास को अंदर मुंह से खींचते हुए अंदर की तरफ सर बात करनी थी कि उनका फिर बोर्ड को बंद करेंगे और मुंह से श्वास, नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। 1960 में अंतिम अभ्यास जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और जस्ट लाइक ए बजिंग बी साउंड को हम करेंगे। एक लंबा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह एक उच्चारण करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। इसके बाद आप चाहें तो ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अदरवाइज दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पलक बंद आंखों पर दबाएं, चेहरे का स्पर्श करें, धीरे धीरे आंखों को खोलने की स्थिति में आ जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें। विश्व योग दिवस के इस अवसर पर योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें। और मैं प्रोजेक्ट लाइफ रेसकोर्स रिंग रोड राजकोट गुजरात की तरफ से आप सभी को कहना चाहूंगा कि योग जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाए स्वस्थ रहने के लिए। अभी हमने एक थीम रखा है कि युवा भारत योग में भारत। आज युवाओं को योग के प्रति जो है जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है और जब युवा योग से जुड़ेंगे तो बहुत सच है कि वो शरीर से,
मन से सशक्त होंगे और अपने भावनाओं से भी सशक्त होंगे, उनका आध्यात्मिक उन्नति होगा और राष्ट्र निर्माण में वो अपना अमूल्य योगदान जो है प्रदान कर सकेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ इस बात को यहाँ विराम देना चाहूँगा और मैं आप सभी का हृदय से आभार मानना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया। सिंह साहब का, फिर सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू संजीव सर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने हमें दो फेसेट से अवगत कराया। एक अपना विचारों की शुद्धता, जिससे आज सब लोग परेशान हैं, विचार शुद्ध नहीं हो पाते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि हाथ जोड़ के प्रणाम मुद्रा में आकर हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं, और मैंने प्रैक्टिस भी किया बीच में और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और दूसरा, आपने हमें हमारी हेल्थ को लेकर जो योग बहुत ही सरल तरीके से, आसन देखने में सरल लग रहे थे, कुछ प्रैक्टिस भी साथ साथ में हुआ, तो मुझे लगा कि वो हम कर पाएंगे। अनुपमा मैम, संजीव सर, अमृतौर मैम तो आई थिंक बहुत करते होंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको सीख रहे हैं। आई थिंक मुझे तो इसमें दोनों तरीके से हेल्थ प्लस मेंटल वेलनेस में जो आपके आज विचारों को सुनने का मौका मिला, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर। मुझे लगता है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने जरूर साथ साथ में अभ्यास किया होगा और इसका पूरा पूरा लाभ उठाया होगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगी पार्टिसिपेंट से कि अगर आपके कोई भी सवाल है तो हम और 10 मिनट, सर अगर आपकी परमिशन हो मिश्रा जी, तो हम 10 मिनट और ले लेते हैं अगर प्रश्न है पार्टिसिपेंट्स के कोई भी। You can unmute and you can ask your questions if you have any. मैं इसमें अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि अभी शायद सब लोग या तो आसन कर रहे हैं या सोच रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या हम योग को रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं? ये उस समय योग निद्रा कर सकते हैं। नहीं सर, शवासन तो हमेशा फेवरेट रहता है, लेकिन सर मैं सीरियसली योग करने का एक उचित समय होता है और खास करके खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे तक योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आसन में पेट के ऊपर बहुत दबाव आता है। तो जब आप खाना खाए होंगे 2 घंटा, वो अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ होता है, और फिर आप उसको जो है उस तरह से देंगे तो वो क्या होगा कि सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस में नहीं रहेगा, और फिर जहाँ योग का लाभ होना चाहिए फिर उसका जो है परेशानी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बेहतर विकल्प ये है कि अगर आप सुबह में उठकर योग कर सकते हैं तो दी बेस्ट, अदरवाइज आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ योर मील, बराबर ना, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस। हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी राजकोट का कल्चर थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर लोग जो है 5 बजे आते हैं योग करने के लिए, तो वो लोग 1 बजे खाना खा लेते हैं, उनको बताया होता है। जो 6 बजे आते हैं वो 2 बजे खाना खा लेते हैं, जो 7 बजे आते हैं शाम में वो कम से कम 2, ढाई 3 बजे के बीच खाना खा लेते हैं। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखें तो बहुत उचित है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, तो उस समय में पेट होना चाहिए हल्का खाली। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिर आपके नॉलेज में रहे, बहुत अच्छा है। आप खाने का एक सिद्धांत होता है, आप कितने लोग फॉलो करते होंगे आई डोंट नो। अभी आप पेट को एक सर्कल बना लीजिए, एक गोल सर्कल, उसको 4 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। तो 4 भाग में बांटने में क्या होगा कि जो आधा भाग है, अगर आप देख सकें तो मैं कोशिश करता हूं ये इस तरह से, अगर आप देख सकें ये ड्राइंग तो अच्छा रहेगा, शायद नहीं दिखता होगा। ये गोल हमने बनाया है और गोल में हमने नीचे एक लाइन कर दी है, राइट, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उधर से जी दिखा जी दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ओके, तो एक सिंपल समझाता हूँ कि गोल सर्कल को नीचे से आधा कर दीजिए, तो आधा भाग जो है वो भोजन से भर लेना चाहिए, और ऊपर का 2 भाग कर लीजिए, तो 1 भाग पानी से भर लेना चाहिए और 1 भाग खाली छोड़ देना चाहिए, तो वो व्यक्ति बीमार जल्दी नहीं होगा। मैं कई बार ये कहता हूँ कि लोग कम खाने से बीमार नहीं है, ज्यादा खाने से ज्यादा बीमार है। तो आप भोजन के ऊपर जो एक योग में सर आता है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम। उसमें मैं कई बार ये कहता हूँ कि जो कोई भी भोजन है कुछ खाते उसका स्वाद कहाँ तक है,
केवल जीभ तक है। जीभ के नीचे क्या स्वाद है? जीभ के नीचे कोई स्वाद नहीं है। तो लोग स्वाद के लिए खा रहे होते, और जो लोग स्वाद के लिए खा रहे होते वो उसी तरह से परेशान हो रहे होते। स्वाद केवल जीभ तक है, इतना याद रखो। जीभ के नीचे कोई स्वाद नहीं है। तो अपने अच्छे आरोग्य के लिए क्यों नहीं करें? स्वाद के लिए खा के अब आप जो है परेशान हो, उससे अच्छा थोड़ा जो रसनेंद्रिय है, जिसको हम रसनेंद्रिय कहते हैं, उसमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। संयम खलु जीवनम, अर्थात संयम ही जीवन है। तो खाने का संयम हो, वाणी का संयम हो, हर चीज में संयम हो तो जीवन श्रेष्ठ है। तो एक बात ध्यान रखिए कि योग करने का भी अपना एक टाइमिंग होता है। सुबह हो दी बेस्ट, नहीं हो तो फिर आप खाना खाने के 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। यस, और कोई? थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नहीं मोनिका मैम, बस मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया और सभी योग और आसन की मुद्राओं को अपने शिष्य के द्वारा प्रदर्शित किया, जिससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आया। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसा इन्होंने कहा कि खाने पे संयम रखा जाए, ये बात तो आपकी सही है, पर पुराने शहर में ऐसी चीजें मिलती हैं कि संयमित हो नहीं पाता आदमी। चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो राजकोट हो, या चाहे बनारस हो। तो सर मेरा एक सवाल है, सही सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। संयमित रहना चाहिए। हेलो। और जैसा हम लोग सुनते थे कि हमारे स्पोर्ट्स के टीचर कई बार कहते थे कि ईट वेल एंड बर्न वेल। मेन चीज वही है कि जितना खाते हैं उसको अगर जलाने की शक्ति है, इसीलिए सबकी डाइट वेरिएबल है। हम लोग क्या होता है कि खा तो लेते हैं पर जो बर्न वाला पार्ट है वो भूल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही और मैं रियली आपके उससे बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। थैंक्स टू यू। थैंक यू सिन्हा सर, थैंक यू सो मच। सद्भाग्य है सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी डॉक्टर परमवीर बताइए जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर सुबह जैसे हम खाली पेट पानी वगैरह लेते हैं, खाली एक शहद डाल के, उसके बाद हम योगा कर सकते हैं स्टार्ट? जी देखिए, पेय पदार्थ जो है ना वो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पेय पदार्थ ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप सुबह में तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, रात में तांबे के बर्तन में आप पानी रख दें और सुबह पिए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है। और पानी पिए उसके थोड़ी देर के बाद आप आसन करें तो कोई नुकसान नहीं होता उसका। और उसमें अगर आप शहद डाल के पीते हैं, कई लोग गुनगुना पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप गर्म पानी को, हल्का गर्म पानी को पीते हैं। और मैं मानता हूँ कि योग में जो षट क्रिया है उसमें शरीर को शुद्ध रखने के लिए जो 6 क्रियाएं बताई गई हैं, कभी वक्त मिलेगा सर तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बोल पाऊंगा कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए जल से अच्छा कोई साधन है नहीं, लेकिन उसकी क्रियाएं होती है उसमें। अगर आप, मैंने ये कई बार हमारे प्रोग्राम्स में कहा कि इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान 2 चीजें हुई, एक वायरस नाक में और दूसरा लंग्स में, दोनों को इन्फेक्ट कर रहा था। तो मैं कहता था कि योग में एक जलनेति का प्रयोग आता है, केवल जलनेति का अभ्यास कर लें तो वो वायरस वहां से निकल गया। और दूसरा, आप वमन कर लें, जो पानी पी के उसको वॉमिट करते हैं वो कर लें तो लंग्स क्लियर हो गया। 2 चीजें करने की जरूरत थी, लेकिन ये 2 चीजें जब तक लोग करते तब तक बहुत लेट हो चुका होता था। तो सही बात है कि अगर आप अपने जैसे हर चीज की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अगर अपने अंदर शरीर के अंदर जो है उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें तो बीमारी व्याधि आएगी कहाँ से? वात पित्त और कफ में जब असंतुलन होगा तो व्याधि आएगी। ठीक है, और आप इन तीनों चीजों का संतुलन जो योग के द्वारा करके रखते हैं तो व्याधि आती नहीं है। ये बहुत अच्छा है। और अगर पानी पीते हैं, एक सामान्य जो एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम। और देखिए पानी जो है आपके शरीर के अंदर के विकार को दूर करता है। अब पानी नहीं, कई लोग हमारे पास आते हैं, सब कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, लोग परेशान है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे में गर्म पानी पिए, उसकी प्रक्रिया होती है, मैं बताता हूँ उनको
तो फायदा होता है। तो पानी से तो अच्छा कोई माध्यम है ही नहीं। पानी जितना ज्यादा हो सके पिए, और जितना पानी पिएंगे आपके चेहरे के ऊपर उतनी जो है आपकी ललाट जो है उतनी चमकती रहेगी, राइट। थैंक यू you, सो sir. मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एक और प्रश्न है सर, कार्तिक पूछना चाहते हैं, योग करने की कोई स्पेसिफिक दिशा होती है क्या? नहीं समझ में आया मैडम, एक बार फिर से पूछ योग, सकती हैं? जी वो कह रहे हैं कि योग करने की कोई स्पेसिफिक दिशा भी होती है, मतलब किसी दिशा में बैठ के हमें योग करना है? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि अभी आजकल जो हम पूर्व पश्चिम और ये जो रखते हैं, आजकल फ्लैट में तो ऐसा कुछ रखना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले छत होते थे, गार्डन होते थे, अपना मकान होता था, फिर अपने पास आंगन होते थे, तो हम कुछ भी कर सकते थे। अभी क्या है कि फ्लैट के अंदर आप क्या कर सकते हैं? हकीकत में सूर्योदय कहाँ से होता है ये बताइए, किस दिशा से होता है? पूरब। तो हमें पूरब दिशा में मुंह रखकर करना चाहिए, और उसमें सूर्य नमस्कार वगैरह जब करते हैं, खास करके सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम तो जहां से सूर्य का उदय होता है हम उधर मुंह करके, जब उगता हुआ सूर्य होता है, जब उसकी जो कलर है उसकी एकदम लाल होती है एकदम, उस समय अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें सूर्य की दिशा में मुंह रखते हुए, आप यकीनन मानिए उसके अलौकिक लाभ हैं, सैकड़ों लाभ हैं। केवल आप 1 राउंड 2 राउंड जितना आपका शरीर आपको परमिट करता हो, जितनी आपकी क्षमता हो आप कीजिए। और सूर्य नमस्कार मैं सबसे बेहतरीन इसलिए मानता हूं कि ये 12 जो अभ्यास है, 12 बॉडी पोस्टर्स का एक सेट है। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा जो है अभ्यास कर सकते हैं। तो आप पूर्व की दिशा में सूर्य की तरफ दिशा मुंह करके आप अवश्य अभ्यास करें, खास करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो उसी तरफ से करें, तो उसके अद्भुत लाभ हैं उसके। यस। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, आपका हम आभार आपका कि आप यहाँ पे आए। अब मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर अमृत पालतोड़ जी से, जो डॉक्टर एस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। मैडम काइंडली प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू प्रोफेसर। Thank you, Monica. On behalf of Interdisciplinary Center for Swami Vivekananda Studies, Punjab University Alumni Association, and Dr. S.S. Bhatnagar, University Institute of Chemical Engineering and Technology, we thank our worthy Vice Chancellor, Professor Rajkumar, for sparing time for us, for being with us and from his busy schedule to bless us all. Our sincere thanks to DUI, Professor V.R. Sinha, to encourage us to organize this program. And सबसे बड़ा हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रोफेसर राजीव कुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने आज हमें इतने अच्छे अच्छे योग आसन बताए, और हम लोगों ने हम करते रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत सी चीजें फिर भी नई सीखने को मिली हैं। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी यूजफुल हम लोगों के लिए, और मैं साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। एंड ये सच में ये चीजें सर हमारी बॉडी को इतनी फ्लेक्सिबल बनाती हैं, बिकॉज जब भी हम कभी बीच में योगा छोड़ देते हैं तो हमें खुद को फील होता है कि जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं उस चीज को, तो हमारी बॉडी कितनी रिजिड हो गई है। एंड जब आप रेगुलर योगासन करते रहते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आप अपनी बॉडी को जैसे भी मूव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सर आपके जो आपने आज हमें बताया वो दैट हैज बीन वेरी यूजफुल, एंड आई थिंक हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने ही इससे बहुत बहुत सीखा होगा। सो सर हमारा बहुत शत शत प्रणाम आपको, हमारा सौभाग्य था कि आज आप हमारे साथ आए और हमें ये सब चीजें आपने सिखाई। एंड हम वाकई चाहेंगे, मैं संजीव शर्मा जी को कहूंगी कि हमें फिर से आपका दोबारा करवाएं, हम दोबारा आपसे कुछ और सीखें। राइट सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैडम कि हमारा एक YouTube चैनल है जो हमारा प्रोजेक्ट लाइफ का है, और उसमें मैं आसन प्राणायाम मेडिटेशन के ऊपर मैं बहुत सारे जो वीडियोज है, छोटे छोटे वीडियोज 2 मिनट के 3 मिनट के डालता रहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े वीडियोज के लिए वक्त नहीं होगा, बहुत छोटे वीडियोज होते हैं। तो वो वीडियोज आप जरूर देखिए, और बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट लाइफ LIFE लाइफ राजकोट, मैं राजकोट से हूँ, और प्रोजेक्ट लाइफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अगर आप प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट में सर्च करेंगे तो आपको जो छोटे छोटे यूजफुल वीडियोस
क्योंकि अगर मैं आपको, जैसे कि मैडम ने कहा कि एक छोटा सा चीज मैंने सिखाया तो मैडम को बहुत अच्छा लगा कि प्रणाम करके गुस्सा नहीं हो सकता, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें है। तो अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको पसंद आएगा। अब दूसरों के लिए भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर जो है प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट की वीडियोज को देखें, जुड़े, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छा वीडियो बना के आपके सामने मैं ले सकूं। थैंक यू सर। मैं ये कहने ही वाली थी बिकॉज जब मुझे अनुपमा मैम ने आपका नाम भेजा था तो मैंने सर्च किया और मैंने आपकी वीडियोस देखी भी हैं, तो मैं यही कहने लगी थी कि सर की वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, हम सब लोग उनको देख सकते हैं और उससे हम लोग गेन कर सकते हैं। सो विद दिस सर वी थैंक यू। इसमें आज हमारे साथ में मैडम मैं एक्नॉलेज करूंगा कि हमारे साथ में श्री ऋषिकेश गाठानी बैठे हुए हैं, जो हमारे आईटी मैनेजर हैं, और ड्यू टू हिज सपोर्ट, एक मिनट मैडम, ड्यू टू हिज सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ जाओ, हमारे पास जो यहाँ टीम है वो 50 लोगों की टीम है मैडम, और हिज आईटी मैनेजर। आज का भी जो ये सेशन है, आज का ये सेशन जो है, जो हमें जो इसमें सपोर्ट किया उन्होंने किया, और पूरे प्रोग्राम का ड्यूरिंग जो है ये यहाँ बैठे हुए हैं ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो। तो रियली थैंक्स टू ऋषिकेश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एंड आपके करके हमें ये सब प्रोग्राम देखने को मिला, एंड हम सर आपके शिष्या का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आसन करके दिखाए हैं। And with this, we thank you all, and we are blessed with the presence of our dear colleagues, Professor Renu Thakur, former coordinator of Swami Vivekananda Studies, Professor B. Oh, मैडम ऑडियो ऑफ है मैडम, आपका ऑडियो ऑफ। Sorry. Thank you very much. ध्यान नहीं रहा मुझे। एंड सो सर मैं दोबारा से कहूंगी, अगर वो मिस हो गया, कि मैं आपके सर शिष्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने आज हमें ये आसन करके दिखाए। एंड with this we thank you all, and we are blessed with the presence of our dear colleagues, Professor Renu Thakur, former coordinator of Swami Vivekananda Studies, Professor B. Shri Sharma, Dean, Mata Vaishno Devi University, Professor Rani Mehta, Chairperson, Department of Sociology, Professor Meena Sehgal, Department of Psychology, Professor Pankaj Mala Sharma, Department of Music, Professor Suman Bedi, Department of Physics, and Professor Sudhir Baveja, School of Open Learning, Dr. Manu Jatna, Wellness Expert, and of course, I want to thank some of my colleagues who have joined today, Professor Meenakshi, Professor Seema Kapoor, Professor Ritu Gupta, Dr. Urushi Gupta, Amit Sopti ji, Vinder ji, Twinkle. So I thank everyone, all the participants who joined us today. It was a very, very nice program, and I sincerely thanks Dr. Sanjeev Sharma and Dr. Anupama Sharma for organizing this and making us in touch with Mishra ji. Thank you very much, Mishra ji, once again. I also want to thank Monica, who has hosted the session, and also our colleagues from Alumni House, all the staff members from Alumni House, because they have been always supportive in organizing all the programs and contacting everybody and putting all the WhatsApp messages to 9,000 members. We have a big group of alumni members, so we thank all our staff members of alumni. Thank you, Monica. And also staff members from Vivekananda Studies and Chemical Engineering. And students who designed such beautiful posters, and they have been communicating with you. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining us this evening. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। और खास करके संजीव शर्मा सर को मेरा नमस्कार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया अच्छी तरह से। और प्रोफेसर राजकुमार सर, वाइस चांसलर सर को मेरा प्रणाम, और कि उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला। और प्रोफेसर वीपी सिंह जी साहब को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में उनके व्यस्त शेड्यूल में से भी वो उपस्थित रहे और बहुत बेहतरीन वक्तव्य उन्होंने दिया। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर, और आने वाले समय में प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट जब भी आपको लगे कि उनकी जो सेवाओं की जरूरत है, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। कभी भी आप हमें कह सकते हैं और हम भी आपके संपर्क में रहेंगे
आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। Thank you so much. प्रणाम।